پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ 20 جون کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے، کم از کم 5 افراد ہلاک۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کا کہنا ہے کہ پورا لبنان جلنا چاہیے۔ אנחנו לא יכולים להפסיק להרוס בתים בדרום לבנון, לא יכולים להפסיק לא לתת לאוכלוסייה בדרום לבנון לחזור, זה מסכן את החיילים שלנו, זה מסכן את התושבים שלנו. دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا ذمہ دار امریکہ ہوگا، چاہے وہ لبنان میں ہو۔ جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان۔ پاکستانی وزیر داخلہ ایرانی حکام کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کی بحالی پر بات چیت کے لیے تہران پہنچ گئے ہیں۔ جانیں گے کہ ایران اور امریکہ کے رہنماؤں کو ایک ہی میز پر لانا اتنا مشکل کیوں ہے۔ میرے خیال میں ایرانینز کو شاید یہ تھا کہ جی سو سون آفٹر دس کانفلکٹ اگر آپ کو یہ آپٹکس آ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہیں اور آپ ان لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں جنہوں نے ان کے سپریم لیڈر کو جو ہے وہ شہید کیا اور ان کا بھی فیونرل بھی ہونا ہے، تو وہ جو آپٹکس ہیں وہ شاید تھوڑے سے گڑبڑ ہو جائیں، تو دے تھاٹ کیا ٹھیک ہے ہم نے جو سائن کرنا ہے وہ تو کر لیا۔ افغان طالبان کا پاکستان کے صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں داعش کے ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ، پاکستان کی تردید۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں مسافر گاڑیوں کے قریب 2 دھماکوں سے 7 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ اور جانیں گے کہ کیا پاکستان میں پیٹرول کی قیمت اتنی ہی کم ہوئی ہے جتنی بڑھائی گئی تھی۔ فرانس میں ہونے والی G7 اجلاس کے دوران انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے دنیا میں چرچے کیوں ہیں، اور جانیے HPV ویکسین نے کینسر میں مبتلا 200 افراد کی جان کیسے بچائی۔ انڈیا میں میڈیکل داخلہ امتحان، فضائیہ کے طیاروں میں پرچوں کی ترسیل، ٹیلی گرام بند، مگر پیپر لیک کیسے ہوئے۔ یہ بھی جانیے کہ آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹروں کی ٹوپیوں پر نام کے بیجز کیوں لگائے جا رہے ہیں، اور کیفے سے سڑک تک سمارٹ گلاسز نے پرائیویسی پر کیسے سوال اٹھا دیے۔ اور سنیے رنگا اور بلا کی سنسنی خیز کہانی، جن کی پھانسی کو انڈیا آج بھی نہیں بھولا۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی کارروائیوں کے نتیجے میں کشیدگی ایک بار پھر خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، جہاں مقامی حکام کے مطابق کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب اسرائیل نے گزشتہ روز حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ لبنان کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق نبتیہ کے علاقے اور اس کے اطراف میں اسرائیلی جنگی طیاروں اور ڈرونز نے متعدد اہداف کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں رہائشی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا اور کئی مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اسی دوران اسرائیلی توپ خانے کی جانب سے سرحدی علاقوں میں گولہ باری بھی جاری رہی۔ یہ پیش رفت اس معاہدے کے پس منظر میں سامنے آئی ہے جس کے تحت ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی اور مختلف محاذوں پر جنگ بندی کو ایک وسیع فریم ورک کا حصہ قرار دیا گیا تھا، جس میں لبنان کا محاذ بھی شامل ہے۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر ایتامر بن گویر نے اس سے قبل سخت بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ پورا لبنان جلنا چاہیے، جو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیلی فوج نے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ להמשיך לפעול גם בניגוד לעמדה של ארצות הברית, כן, אנחנו מדינה עצמאית ואנחנו לא יכולים להפסיק להרוס בתים בדרום לבנון, לא יכולים להפסיק לא לתת לאוכלוסייה בדרום לבנון לחזור, זה מסכן את החיילים שלנו, זה מסכן את התושבים שלנו. אסור לנו לתת להם לחזור לגבולות, לחזור למה שהיה לפני 7/10, ואנחנו חייבים להמשיך לשלוט בשטח, גם בניגוד לדעתו של הנשיא טראמפ۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسرائیلی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی حملے خطے کے استحکام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کی کسی بھی خلاف ورزی کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ ان کے مطابق حالیہ معاہدے کا مقصد تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ تھا، جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ موضوعی هست که
در تفاهم نامه وجود داره. اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان. दूसरी जानब इसराइल का कहना है कि उसने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए 150 से जायद हमले किए हैं, जो इसके मुताबिक 4 इसराइली फौजियों की हलाकत के जवाब में किए गए हैं। उधर हिजबुल्लाह का मौक़िफ़ है कि अगर इसराइल जंग बंदी की शराइत का एहतराम करे तो वो भी इस पर अमल करेगा। तंजीम का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। खित्ते में सूरत हाल एक बार फिर गैर यकीनी का शिकार हो गई है। अगरचे बज़ाहिर जंग बंदी नाफिज है, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ और मुसलसल फ़िज़ाई कार्रवाइयों के बाइस किसी पायदार अमन के इम्कानात अब भी गैर वाज़े दिखाई देते हैं। Where is the public opinion? Where are those countries to see how we, the vulnerable, are living? Life is very bitter. Find us a solution. ईरान के सरकारी खबरसा इदारे इरना के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के शहर मशहद पहुंच गए हैं, जहां वो इमाम रजा के मज़ार पर जाएंगे और फिर हुकाम से बातचीत के लिए तेहरान रवाना होंगे। इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी वजीर दाखिला ईरानी हुकाम के साथ स्विट्ज़रलैंड में अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की बहाली पर बातचीत करने वाले हैं। वाज़ेह है कि स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के बाद होने वाली एक तकरीब की अचानक मनसूखी ने कई सवालात को जन्म दिया है। क्या यह मनसूखी पाकिस्तान के लिए सिफारती शर्मिंदगी का बाइस बनी और ईरान और अमरीका के रहनुमाओं को एक ही मेज पर लाना इतना मुश्किल क्यों है? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए उमर दराज नंगियाना ने स्विट्जरलैंड में मौजूद पाकिस्तानी सहाफियों फहद हुसैन और अनस एहसन मलिक से बात की। हम स्विट्जरलैंड में ल्यूसन में हैं और इसकी वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान और कतर दोनों मिलके यूएस और ईरान का जो MOU साइन हुआ था उसकी कमेमोरेशन करने जा रहे थे। यहाँ पर ल्यूसन से थोड़ा सा करीब ही एक रिसोर्ट है, वहाँ पर उसे कहते हैं बर्गन स्टॉक, तो वो हुआ नहीं। मैं भी आया हुआ था, मेरे साथ और बहुत से सहाफ़ी पाकिस्तान से भी आए हुए थे, लेकिन हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमें पता चला कि नथिंग्स हैपनिंग। फ़हद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फ़हद हुसैन, अनस मलिक भी मौजूद हैं। फ़हद साहब मुझे ये बताइए कि पहले जब आप आ रहे थे तो क्या खदशा था ज़हन में कि हो सकता है कि ये ना हो, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा इनका बिहेवियर रहा है फॉर द पास्ट 4 months? देखिए, वो खदशा तो हमेशा रहता ही है उमर, और जिस तरीके से मामला चल रहे थे कि हर थोड़ी देर बाद सूरत हाल तब्दील हो रही थी, लेकिन जब हम इस्लामाबाद से निकले तो उस टाइम तक तो यही लग रहा था कि हो ही जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के आने की तैयारियां भी हो गई थी। और हम जब बीच में हमने जब वो फ्लाइट चेंज की है और यहाँ के लिए फ़्लाइट पकड़ी है, तो उस वक्त तक आइडिया होना शुरू हो गया था कि कुछ खटपट होनी शुरू हो गई है और अब ये हमने अगली फ़्लाइट पकड़नी है, वो पकड़ें या इधर से ही जैसे कहते हैं कि बस कटाएं और वापस चले जाएं। तो अनस, आप ख़ास तौर पे आपको एक्सेस भी रही है आगे तक, आप अभी भी मुझे पता चला रिसोर्ट से हो गया आ रहे, तो ज़रा थोड़ा सा बताएं पीछे क्या चल क्या रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, और क्या हो क्या रहा था, हुआ क्या इनफैक्ट? देखें, 2-3 चीज़ें। जब तक हम इस्लामाबाद से जहाज़ पे बैठे थे उस वक्त तक ये खबर नहीं आई थी कि इलेक्ट्रॉनिकली MOU साइन हो गया। वो MOU साइन होना मेरे ख्याल से वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पाकिस्तानी साइड ये एक्सपेक्ट कर रही थी, कतरी साइड भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इन पर्सन साइनिंग होगी। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनसे बात करके तमाम फरीक़ैन से, कि ये अमरीकी साइड का इनिशिएटिव था कि जल्द अज जल्द जो है वो MOU साइन किया जाए, क्योंकि उनको ये खदशा था कि शायद स्कटल जो है ये प्रोसेस किया जा सकता है किसी भी वजह से। फ़हद साहब, आपके पास थोड़ा सा एनालिसिस चाहूँगा मैं। मुझे बताइए, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ना वो इसको देख रहा है एज एन ऑप्टिक्स की एक अपॉर्चुनिटी, कि जितना उन्होंने पीछे सारा कुछ काम किया हुआ था, तो दिस वाज वन मोमेंट जिसमें कि पाकिस्तान थोड़ा हाईलाइट होता और वो इसको कैश इन कर सकता था। तो डू यू थिंक दिस इज काइंड ऑफ एन एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान कि ये नहीं हो सका और फिर वो मोमेंट लूज हो गया? नहीं, मेरे ख्याल में एम्बैरेसमेंट तो नहीं है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का तो कोई रोल नहीं था कि ये नहीं हो पाया। वो ये साइनिंग नहीं हुई, उसमें हमें बहुत हद तक अंदाज़ा है कि दोनों साइड्स में क्या खदशात थे, और ईरान की साइड से शायद ये था कि इट्स टू सून। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रोल जो है वो तो किसी भी तरीके से अंडरमाइन नहीं होता है, क्योंकि देखिए, अब तो ये तो एक सेरेमनी थी, बट अब तो वो उस MOU के ऊपर डॉक्यूमेंटेड है, प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत हैं, मेन मीडिएटर हैं। सो आई मीन, जो रिकग्निशन आपको मिलनी थी, जो एक्नॉलेजमेंट आपको मिलनी थी, वो अब आपको तहरीरी तौर पर मिल गई है। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होना था, वो नहीं हुआ। तो डू यू थिंक
ایک پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ کیا اسرائیل از دا فیکٹر یا اور کچھ وجوہات ہیں کہ یہ ہو نہیں سکا، اور پھر آگے کیسے چلے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں ٹاکس فیز 1 تھا کہ جی ایم او یو ہو جائے. ایم او یو کے اندر جو ہے وہ تمام تر جو نکات تھے وہ شامل ہو گئے. اس میں یہ اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ فوری طور پر کون سے اسٹیپس لیے جائیں گے اور سیکنڈ راؤنڈ میں کیا کیا ہوگا. تو یہاں تک تو میرے خیال میں سو فار سو گڈ ہے. اب نیکسٹ راؤنڈ کا ٹاکس ہونا، دیٹ از ویئر اب ڈپلومسی تیز ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں جو پرائم منسٹر بھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف، ایران کے صدر بھی آ رہے ہیں اور انگیجمنٹس ہونی ہیں. سو آئی تھنک جو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان از فرنٹ اینڈ سینٹر، بیکاز ابھی ایم او یو سے لے کر اور ٹاکس تک کا جو سفر ہے وہ طے کرنا باقی ہے، اور اس میں بھی پاکستان کا کروشل رول ہے ٹو کیپ بوتھ سائڈز کمپلیٹلی انگیجڈ. وہ پش تو چل رہا ہے، پاکستان کی طرف سے بھی چل رہا ہے اور قطری سائڈ سے بھی چل رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو امپیڈیمنٹس ہیں اس کو بریچ کیے جائیں. اور اسی اشنا میں ہم نے دیکھا ہے کہ لیبنن کا سیز فائر ہو گیا ہے. اگر آنے والے چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں جب بھی یہ کچھ سینکشنز کے اوپر اگر کچھ لچک دکھتے ہیں تو ہم جلد سے جلد پھر اس بات چیت کا سلسلہ ریزیوم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اٹ گیوز یو اے سینس کہ سیریسلی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن سیریسنیس صرف پیپر کے اوپر دکھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ عملی طور پہ صرف آ کے یا گھومنے پھرنے سے زیادہ پیپر پہ دکھانے کی ضرورت ہے. گھومنے پھرنے سے مجھے یاد ہے کہ اب ہم جو گھوم پھر رہے ہیں یہاں پہ آ گئے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ مطلب ڈپ شپ مارے لیک کے اندر یا کیا کریں؟ مجھے تو بہت زیادہ ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے ایک ڈبکی لگا لی جائے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب آئے تو کام تو کرنا ہے. ایک آخری آپ سے میں ایک تھوڑا سا انالیسس لے کے پھر ختم کرتے ہیں. ایرانینز کیوں ریلیکٹنٹ تھے؟ یہ اپرچونٹی کیوں نہیں لی انہوں نے؟ مطلب کیا وہ ڈر رہے تھے کہ ان کی جو لوکل آڈینس ہے وہ اس کو اچھی طرح نہیں دیکھی؟ دیکھیے میرے خیال میں اس کا جو انڈیکیشن ہے نا وہ ان کے سپریم لیڈر کے بیان میں آ گیا ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ جی میں خود ذاتی طور پر تو اس کے حق میں نہیں تھا کہ یہ ہو، لیکن میری جو بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی اکثریت نے کہا کہ ہمیں کرنا چاہیے تو میں اس لیے کر لیا. اب وہ جو ان کا میسیجنگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ان سمیت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اگریمنٹ جو ہے اس سے ایران کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، حالانکہ ایسا شاید نہیں ہے. میرے خیال میں ایرانینز کو شاید یہ تھا کہ جی سو سون آفٹر دس کانفلکٹ اگر آپ کو یہ آپٹکس آ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہیں اور آپ ان لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں جنہوں نے ان کے سپریم لیڈر کو جو ہے وہ شہید کیا اور ان کا بھی فیونرل بھی ہونا ہے، تو وہ جو آپٹکس ہیں وہ شاید تھوڑے سے گڑبڑ ہو جائیں. تو دے تھاٹ کیا ٹھیک ہے ہم نے جو سائن کرنا ہے وہ تو کر لیا ہے، باقی فی الحال یہ نہ کریں. میرے خیال میں یہی ہوا ہے. فاضل صاحب آپ کا بہت شکریہ، انس آپ کا بہت شکریہ. تو ہم لوگ کور کرنے کے لیے آئے تھے ان ٹاکس کو، جو کہ فرسٹ راؤنڈ یہاں پہ ہونا تھا سوئٹزرلینڈ کے اندر، وہ نہیں ہو پایا. اب نیکسٹ جو ہے جب اس کی ڈیٹ آئے گی اور وینیو آئے گا تو ہم کوشش کریں گے ہم وہاں پر جائیں اور آپ کو دکھائیں کہ ایگزیکٹلی کس طرح یہ فارورڈ چلتی ہیں جو بات چیت ہے ایران اور یو ایس کے درمیان، اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. پاکستان نے افغان وزارت دفاع کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیے گئے فضائی حملوں میں شدت پسند تنظیم داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. افغان وزارت دفاع کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ سلسلہ وار پیغام میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جمعرات کی رات اسلامی امارات افغانستان کی وزارت دفاع کی فضائیہ نے پاکستان کے صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. بیان کے مطابق جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا وہ مبینہ طور پر بعض دشمن انٹیلیجنس حلقوں کی مدد سے افغانستان پر حملوں کی منصوبہ بندی اور مربوط کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اس سے قبل انہیں کئی مہلک حملوں کی منصوبہ بندی اور آغاز کے لیے آپریشنل اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا. افغان حکام نے جن علاقوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ان میں بلوچستان میں قلعہ عبداللہ اور چاغی کے اضلاع میں متعدد مقامات کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ضلع اورکزئی کے علاقے کمبر خیل میں داعش خراسان کی ایک تنصیب شامل ہے. افغان حکام کے یہ دعوے سامنے آنے کے بعد پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے ایکس پر جاری ایک فیکٹ چیک رپورٹ میں افغان طالبان کی جانب سے ڈرون حملوں سے متعلق کیے گئے دعووں کو مسترد کیا گیا ہے. وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان حکام مختلف سرکاری بیانات اور اپنے حامی ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں مبینہ طور پر دولت اسلامیہ خراسان یعنی داعش کے کیمپوں کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا ہے. بیان میں ان دعووں کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ طالبان حکومت کا ایک سادہ نوعیت کا ڈرون خیبر کے علاقے شنکو کے قریب پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا.
जिसे पाकिस्तानी फिजाइया के एयर डिफेंस निजाम ने फौरी तौर पर शिनाख्त करके तबाह कर दिया। हुकाम ने इस ड्रोन की तस्वीर भी जारी की है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि दाइश समेत 2 दर्जन से जायद शिद्दत पसंद तंजीमों के कैंप दर हकीकत उन इलाकों में मौजूद हैं जो अफगान तालिबान के जेर असर हैं और वहीं से उनकी सरगर्मियां चलाई जा रही हैं। हुकाम के मुताबिक पड़ोसी ममालिक और खित्ते में होने वाली दहशत गर्दी से खुद को अलग जाहिर करने के लिए तालिबान हुकाम इस नौयत के बयानात जारी करते हैं, जिनमें दाइश, FAK और FAH समेत दीगर गिरोहों का हवाला दिया गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता चंद माह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वक्फे से सरहदी झड़पों और फिजाई हमलों का सिलसिला जारी है, जिनमें अब तक दोनों ममालिक के हुकाम के मुताबिक दर्जनों अफराद की हलाकत हुई है। पाकिस्तान अफगान तालिबान की हुकूमत पर उन शिद्दत पसंदों को पनाह देने का इल्ज़ाम आयद करता है जो पाकिस्तान पर हमले करते हैं, जबकि काबुल इस इल्ज़ाम की तरदीद करता है। पाकिस्तान माजी में मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में हमले करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक ठिकानों को निशाना बनाने और शिद्दत पसंदों को हलाक करने की तस्दीक कर चुका है। ताहम अफगान तालिबान हमेशा इल्जाम आयद करते हैं कि इन हमलों में मारे जाने वाले अफराद आम शहरी होते हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू के करीब डुमेल के इलाके में मुसाफिर गाड़ियों के करीब वक्फे से 2 धमाकों में 7 अफराद हलाक जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। जिलाई पुलिस अफसर यासिर आफरीदी ने बताया कि धमाकों में 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये वाकया डुमेल के इलाके में थाना अहमद जई की हदूद में पेश आया है। मुकामी इलाके से ताल्लुक रखने वाले अमन कमेटी के रहनुमा नूर दराज ने मुकामी सहाफियों को बताया कि मुकामी ड्राइवर अल्लाह नूर की गाड़ी सवारियों को लेकर रवाना हुई थी और जैसे मरका बेरा के पास पहुंची वहां धमाका हुआ। उनका कहना था कि इस गाड़ी में ड्राइवर के खानदान के लोग भी थे और चंद दीगर अफराद भी सवार थे, जिन पर धमाका खेज मवाद से हमला किया गया। पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुसाफिर गाड़ी पर धमाके के बाद जख्मियों को ले जाने वाली गाड़ी पर भी कुछ फासले पर रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। इसमें भी जानी नुकसान हुआ है। यासिर आफरीदी का कहना है कि इन धमाकों में 7 अफराद हलाक हुए हैं और 3 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को खलीफा गुलनवाज अस्पताल बन्नू में दाखिल किया गया है। इस धमाके की नौयत के बारे में मुतज़ाद इतलात मौसूल हुई हैं। इब्तिदाई तौर पर पुलिस बयान में कहा गया है कि ये धमाके रिमोट कंट्रोल से किए गए हैं, ताहम पुलिस इस बारे में तहकीकात कर रही है। बन्नू के करीब वाक़े तहसील डुमेल में अप्रैल सन 2026 में डुमेल पुलिस स्टेशन को एक खुदकुश कार बम धमाके का निशाना भी बनाया गया था, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे, जबकि करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के बाइस हमलावर अपने हदफ तक मुकम्मल तौर पर पहुंचने में नाकाम रहा। ताहम धमाके के असरात मुकामी आबादी तक महसूस किए गए थे। फिर मई 2026 में बन्नू के फतेह खेल इलाके में पुलिस चौकी पर एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें मुतअद्दिद पुलिस एहलकार हलाक और जख्मी हुए। इन वाकयात के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने डुमेल और मुल्हिका इलाकों में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशंस में इजाफा किया, जिनके दौरान कई मुश्तबा शिद्दत पसंदों को हलाक या गिरफ्तार करने का दावा किया गया। बन्नू के साथ लकी मरवत में भी तशद्दुद के वाकयात पेश आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज लकी मरवत में गजनी खेल के इलाके खैरो खेल में अमल कमेटी के रहनुमा के हुजरे पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया गया था, जिसमें 13 अफराद जख्मी हुए थे। खैरो खेल में एक हफ्ते पहले जुमे के रोज ही मस्जिद के करीब धमाका भी हुआ था और ये उस वक्त हुआ जब लोग जुमा की नमाज अदा कर रहे थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी और खित्ते में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान किया है। नई कीमतों के तहत पेट्रोल 74 रुपये फी लीटर सस्ता होकर 299 रुपये, जबकि डीजल 67 रुपये कम होकर 311 रुपये फी लीटर हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के बहरान के दौरान अवाम पर इजाफी बोझ कम करने के लिए हुकूमत ने 128 अरब रुपए खर्च किए और अब आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम तक मुंतकिल किया जा रहा है। जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा।
अगरचे ये हालिया महीनों की सबसे बड़ी कमी है, ताहम पेट्रोल की मौजूदा कीमत अब भी जंग से पहले की सतह से तकरीबन 33 रुपए फी लीटर ज्यादा है, क्योंकि 28 फरवरी को पाकिस्तान में पेट्रोल की फी लीटर कीमत तकरीबन 266 रुपए थी। हालिया हफ्तों में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी आई है। ये कीमतें अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुफाहमती याददाश्त के बाद जंग के आगाज के दिनों यानी मार्च के अवाइल के बाद से अपनी कम तरीन सतह पर आ गई हैं। जंग शुरू होने से पहले ब्रेंट खाम तेल की कीमत तकरीबन $70 फी बैरल थी, लेकिन जंग के आगाज के बाद ये बढ़कर $120 फी बैरल से भी ऊपर चली गई थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के बाद जुमेरात को ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर तकरीबन $76 फी बैरल पर आ गई है। अगरचे आज इसमें दोबारा कुछ इजाफा हुआ और अब ये $80 फी बैरल से कुछ कम सतह पर है। अगरचे हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी का ऐलान किया है, ताहम गुज़िश्ता चंद माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार रद्दोबदल के साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी यानी PDL में भी मुसलसल इजाफा और कमी की जाती रही है। हुकूमत ने माली साल 2026 में PDL की मद में तकरीबन 14.5 खरब रुपए जमा करने का हदफ मुकर्रर किया है, जो मुल्क की गैर टैक्स आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बनता है। अप्रैल के इख्तिताम तक हुकूमत इस मद में 12.34 खरब रुपए पहले ही वसूल कर चुकी थी। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में अवाम पर असल इजाफी बोझ पेट्रोलियम लेवी की वजह से पड़ रहा है, जो जून के आगाज में फी लीटर 116 रुपए और बाद में 106 रुपए मुकर्रर की गई थी। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस अब भी कीमतों का बड़ा हिस्सा हैं, जिसके बायस मजीद बड़ी कमी की गुंजाइश महदूद दिखाई देती है। याद रहे कि मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े ने आलमी तेल मंडी को शदीद मुतासिर किया, क्योंकि इस दौरान आबनाए हुर्मुज़ अमलन बंद हो गई थी। ये दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुजरगाहों में शुमार होती है, जहां से दुनिया के तकरीबन 20% तेल और कुदरती गैस की तरसील होती है। कशीदगी के बायस इस रास्ते से जहाज़ों की आमदोरफ्त तकरीबन रुक गई और रोज़ाना गुजरने वाले तकरीबन 138 जहाज़ों के मुकाबले में सिर्फ 34 जहाज़ गुजर सके। माहिरीन का कहना है कि जहाज रानी की सरगर्मियों की मुकम्मल बहाली में वक्त लग सकता है और इस बुरहान के असरात आइंदा कई माह तक आलमी मईशत और तवानाई की कीमतों पर महसूस किए जाते रहेंगे। मजीद तफसील समीद ककरो से। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए शिपिंग कब तक मामूल पर आएगी? अमेरिका और ईरान ने जंग खत्म करने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इससे कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि तेल को बहने दिया जाए, लेकिन हकीकत में ये इतना आसान नहीं। तनाज़े को ख़त्म करने के फ्रेमवर्क के हिस्से के तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाना है, लेकिन कागज़ पर दोबारा खोलना एक बात है और हुर्मुज़ के जरिए शिपिंग को दोबारा मामूल पर लाना दूसरी बात। माहिरीन का कहना है कि ये तवक्को न रखें कि ये जल्द हो जाएगा। हम ये पहले भी देख चुके हैं। 2019 में खलीज फारिस के हमलों के बाद ज्यादातर जहाज़ों को इस इलाके में वापस आने के लिए तकरीबन 8 हफ्ते लगे और ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर मामूल पर आने में तकरीबन 6 माह। इस बार इससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। सबसे बड़ा मसला सेफ्टी है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में सी माइंस बिछाई गई हैं, इसलिए अपने जहाज भेजने से पहले जहाज़ों के मालिक सबूत मांगेंगे कि ये रास्ता महफूज है और सी माइंस को हटाए जाने के बाद भी जहाज फौरन वापस नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है कि जहाज़ के मालिकों को अमेरिका और ईरान दोनों से इस बात की काबिल एतमाद तस्दीक की ज़रूरत होगी कि आबनाए हुर्मुज़ के जरिए मुकर्रर करदा रास्ता महफूज है, और शायद अगर अमरीकी बहरी अफवाज आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद हों, ख़ास तौर पर शुरू में, तो तजारती जहाज़ों को यकीन दहानी फराहम की जा सकती है। फिर इंश्योरेंस है। तनाज़ात के दौरान जब खतरा बढ़ जाता है तो प्रीमियम्स तेजी से बढ़ सकते हैं और टेंशन कम होने पर वो फौरन नीचे नहीं आते। लॉर्ड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक 28 फरवरी को तनाज़ा शुरू होने के फौरन बाद मार्च के पहले हफ्ते में वॉर रिस्क प्रीमियम्स 2 गुना से ज्यादा हो गए थे और अब भी वो काफी हद तक ज्यादा हैं। जब तक ये अखराजात कम नहीं होते, बहुत से जहाज आबनाए हुर्मुज़ से दूर ही रहेंगे। रास्तों में तब्दीली भी एक मसला है। जब आबनाए हुर्मुज़ गैर महफूज हो गई तो कंपनियों को जल्दी से अपने मंसूबे बदलने पड़े। कुछ जहाज रुक गए और अब भी क्लियरेंस के लिए करीब ही इंतजार कर रहे हैं। बिमको की रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 600 जहाज खलीज फारिस के अंदर फंसे हुए हैं, जिनमें तकरीबन 250 टैंकर शामिल हैं, लेकिन दूसरों को तवील मुतबादिल रस्तों पर भेज दिया गया है और वो दूसरी सप्लाई लाइंस पर मुंतकिल हो गए। मिसाल के तौर पर अमरीकी मशरकी साहिल या मगरबी अफ्रीका। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन बारूदी सुरंगों की सूरत हाल के बारे में यकीन करने के लिए कम अज कम 2 माह लगेंगे।
चार्टरिंग की एडजस्टमेंट का एक और दौर होगा जिसके तहत वो जहाज जो गलत जगह पर रहे हैं उन्हें वापस खलीज के रास्तों पर मुख्तस किया जाएगा। और फिर बैकलॉग है। हफ्तों के तातुल का मतलब ये है कि खेप जमा हो गई है, बंदरगाहें भरी हुई हैं और दुनिया भर में सप्लाई चेन्स इस तेल और गैस के दोबारा मुंतकिल होने का इंतजार कर रही हैं। चुनाचे बेहतरीन सूरत हाल में भी आबना हुर्मुज़ के जरिए शिपिंग को मामूल पर आने में महीनों लग जाएंगे और ये तब है जब अमन मुआहिदा बरकरार रहे। अगर कशीदगी दोबारा बढ़ती है तो इसमें इससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है, जिससे दुनिया तशवीश में मुब्तला रहेगी। और अब दीगर अहम आलमी खबरों पर एक नजर डाल रहे हैं गजनफर हैदर। वेनेजुएला में एक गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज के नुमाइंदों और मुल्क के हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, जिसे अमरीका ने सराहा है। ये तकरीबन 3 बरस में तवील अरसे से नज़रअंदाज किए गए हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ अपनी नौयत के पहले मुज़ाकरात हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये एक आज़ाद और खुले वेनेजुएला की जानिब पहला कदम है। ये पेशरफ्त जनवरी के अवाइल में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों के बाद सामने आई है, जिनका अख्ताम सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर हुआ था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर की क़यादत को उनकी अपनी जमात के अंदर से एक मुमकिन चैलेंज का सामना है। लेबर पार्टी के मकबूल रहनुमा एंडी बर्नम ने एक ज़मनी इंतखाब में बरतानवी पार्लियामान की नशिस्त जीत ली है, जिसके बाद वो वज़ारत उज़्मा के लिए मैदान में उतरने का काबिल हो गए हैं। बरतानिया में अब कई हफ्तों तक गैर यकीनी सूरत हाल रह सकती है, जबकि कीर स्टारमर का इसरार है कि वो अपने ओहदे पर बरकरार रहने के लिए डटे रहेंगे। फ्रांस में होने वाले G7 इजलास के दौरान इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने बैनुल अक़वामी सतह पर खासी तवज्जो हासिल की है। तकरीबन 16 माह बाद दोनों रहनुमा आमने सामने आए। इस बार मोदी और ट्रंप माजी की मुलाकातों की तरह गले तो नहीं मिले, मगर ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। इसके कई पहलुओं पर इंडिया में क्या बहस जारी है, तफसील गाफिरा कादिर से। He's as tough as they come. But if anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है। फ्रांस में होने वाली G7 समिट के दौरान इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने बैनुल अक़वामी सतह पर खासी तवज्जो हासिल की है। So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. तकरीबन 16 माह बाद दोनों रहनुमा आमने सामने आए। इस बार मोदी और ट्रंप माजी की मुलाकातों की तरह गले तो नहीं मिले, बस मुस्कुराए और मुसाफा किया। लेकिन दोनों ने एक दूसरे की खूब तारीफ की, जिस पर काफी तज्जिये हो रहे हैं। गुज़िश्ता 16 माह के दौरान इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात काफी कशीदगी के दौर से गुजरे, इसलिए इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सदर ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता बरस की लड़ाई रुकवाने का दावा किया था, हालांकि इंडिया इससे इनकार करता है। इसके अलावा ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज की जद में आने वाली ममालिक में इंडिया भी शामिल था। तब से ही दोनों के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। लेकिन फिर दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई और मासूलात में कमी के बाद एक नए ट्रेड फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक किया गया। ताहम क्रिटिक्स का कहना है कि इस मुआहदे में इंडिया नुकसान में रहा और अमेरिका फायदे में। अगरचे ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, लेकिन इसके कई पहलू पर इंडिया में बहस जारी है। इंडिया के साबिक डिप्लोमेट अनिल त्रिगुनियात कहते हैं कि ये मुलाकात इसलिए अहम थी क्योंकि दोनों रहनुमा तकरीबन 16 माह बाद मिल रहे थे। उनके मुताबिक अगरचे इस बार माजी जैसी गर्मजोशी दिखाई नहीं दी, ताहम सदर ट्रंप वजीर आज़म मोदी की तारीफ करते नजर आए और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए ये मुलाकात अहम साबित हो सकती है। अनिल त्रिगुनियात ये भी कहते हैं कि सदर ट्रंप ने क्वाड इत्तेहाद के मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा बात नहीं की, बल्कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात या G2 का जिक्र किया। वो इंडिया के लिए एक मुस्बत इशारा नहीं समझा जा सकता। बातचीत में पीएम मोदी ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग रुकवाने के लिए सदर ट्रंप की तारीफ की। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास में प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ।
सदर ट्रंप के बाज़ बयानात पर इंडिया में तनकीद भी सामने आई है. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. इंडिया के मारूफ जियो स्ट्रैटेजिस्ट ब्रह्मा चलाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंडियन मीडिया के एक बड़े हिस्से ने सदर ट्रंप के एक मजाकिया जुमले को अमेरिका के एक संजीदा दिफाई वादे के तौर पर पेश किया. उनके बकौल शायद इसी वजह से अमरीकी रहनुमा इंडिया या उसकी क़यादत की तारीफ करके सिफारती फ़ायदा उठाने में महारत रखते हैं. इंडिया की सीनियर सहाफ़ी सुहासिनी हैदर ने भी ट्रंप के बयान पर सवाल उठाए. उनके मुताबिक पीएम मोदी या वजारत खारजा को इस बात का कुछ तो जवाब देना चाहिए था. सुहासिनी हैदर के मुताबिक ये तासुर देना कि इंडिया को अपनी सलामती के लिए अमेरिका की ज़रूरत है एक नामुनासिब बात है, चाहे उसे मजाक ही में क्यों ना कहा गया हो. इधर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की रुकनी पार्लियामेंट और साबिक सहाफ़ी सागरिका घोष ने भी इस मुलाकात को तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने खास तौर पर उस हालिया वाक़या का जिक्र किया जिसमें 3 इंडियन सेलर अमरीकी फौजी कार्रवाई में हलाक हो गए थे. सागरिका घोष ने लिखा कि सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान इन हलाकतों को इट्स अ रफ प्रोफेशनल करार देकर टालने की कोशिश की, जबकि वज़ीर आज़म मोदी ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया. उनके मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी को इस मामले पर ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था. अगरचे मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नई शुरुआत के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन ताल्लुकात की बेहतरी में ट्रेड एग्रीमेंट्स, अमेरिका और चीन के बेहतर होते हुए ताल्लुकात और खित्ते की बदलती हुई सियासत जैसी मामलात की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. यही वजह है कि मुलाकात की असल अहमियत शायद आने वाले दिनों में ज़्यादा वाज़ेह होगी. इंग्लैंड और दीगर मगरबी ममालिक में HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने सेहत के शोबे में एक बड़ी पेशरफ्त साबित की है, जहां एक नई तहकीक के मुताबिक इस वैक्सीन की बदौलत कैंसर से तकरीबन 200 अमवात को रोका जा चुका है. ये इंकशाफ मारूफ तिब्बी जरीदे दी लैंसेट में शाया होने वाली तहकीक में किया गया है. बरतानिया में सन 2008 से स्कूल सतह पर लड़कियों को ह्यूमन पापिलो वायरस यानी HPV से बचाव की वैक्सीन दी जा रही है, जो इस वायरस से पैदा होने वाले कैंसर खसूसन सर्वाइकल कैंसर के खतरात को नुमाया तौर पर कम करती है. बादशाह इस प्रोग्राम को लड़कों तक भी वसअत दी गई ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके. सोफी हैचनसन की रिपोर्ट, खतीजा आरिफ की ज़बानी. स्कूलों में लगाए जाने वाले ये टीके पहले ही जाने बचा रहे हैं. रिसर्च में ये सामने आया है कि लड़कियों के जिस ग्रुप को ये वैक्सीन दी गई थी उनमें से किसी की भी सर्विकल कैंसर से मौत वाक़ई नहीं हुई. It's a remarkable day. The new research. ये गैर मामूली दिन है. नई तहकीक साबित करती है कि HPV वैक्सीन मौसर है, ये जानें बचाती है और सर्विकल कैंसर से अमवात में कमी लाती है. और अब इस बात का इम्कान है कि बरतानिया में सर्विकल कैंसर का खात्मा हो जाए. Cervical cancer as a public health issue here in the UK. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या HPV स्किन टू स्किन यानी जिस्मानी राब्तों से फैलता है. 99% वाक़यात में ये सर्विकल कैंसर का बायस बनता है. बरतानिया में सन 2008 से नौजवान लड़कियों को इससे बचाने की वैक्सीन दी जा रही है. 2020 से 2024 के दरमियान ये रिकॉर्ड रहा कि किसी भी 20 साल की लड़की की सर्विकल कैंसर से मौत नहीं हुई और 30 साल से कम उम्र की लड़की का इस कैंसर से मरने का इम्कान 0 के बराबर रहा. माहिरीन के मुताबिक जिन 200 ख़वातीन की जान बची, इसके लिए बराह रास्त ये वैक्सीन जिम्मेदार थी. एलेक्जेंडर लेक को 30 साल की उम्र में सर्विकल कैंसर की तशखीस हुई थी. जब HPV वैक्सीन मुतारिफ कराई गई तब तक वो स्कूल छोड़ चुकी थी. जब मैंने ये लफ्ज़ सुना तो वो सर से गुजर गया. ये मुश्किल लम्हा था. साथ ही मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ गलत है. बहुत शॉकिंग था, लेकिन कैंसर की तशखीस ने मेरे तमाम खदशात और सवालात का जवाब दे दिया. उनके कैंसर का कामयाब इलाज और उनके सर्विक्स को तकरीबन पूरी तरह से निकाला गया. इसके बावजूद वो माँ बनी और अब अपनी बेटी को इस बीमारी से महफूज रखना चाहती हैं. मैं इस वैक्सीन की असल हामी हूँ, क्योंकि अब आदाद शुमार इसके फ़वाइद साबित कर रहे हैं. अब जो स्मेयर टेस्ट हो रहे हैं उसमें HPV को देखा जा रहा है ताकि इसके ख़तरे को कम किया जा सके. जब IV टेस्ट कराने की उम्र में पहुँचेगी
तो मैं उसको लेकर जाऊंगी। मैं उसे इस सहूलत से महरूम नहीं रखूंगी। माहिरीन खबरदार करते हैं कि इंग्लैंड में लड़कियों के वैक्सीन लगवाने की शरह अब भी 90% से कम है, जबकि आलमी हदफ के मुताबिक 2040 तक सर्विकल कैंसर के खात्मे के लिए यही शरह ज़रूरी समझी जाती है। इंडिया के मेडिकल दाखिला इम्तिहान यानी नीट में पेपर लीक के इल्जामात सामने आने के बाद कल दोबारा इम्तिहान मुनक्कद किया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि इस बार पेपर लीक को रोकने के लिए गैर मामूली हिफाजती इकदामात किए गए हैं। सवालात पर मबनी पर्चों को इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचाने के लिए इंडियन फिजाइया के तैयारों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को 22 जून तक आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि टेलीग्राम पर पाबंदी क्यों लगाई गई और इसका तुलबा पर क्या असर पड़ा, और ये भी कि नीट इम्तिहान इतना अहम क्यों है। जानिए गाफिरा कादिर से। इंडिया के मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के बाद पेपर लीक के इल्जामात सामने आए। इम्तिहान कैंसिल कर दिया गया और अब 21 जून को दोबारा कराया जा रहा है। पेपर दोबारा लीक ना हो इसके लिए गैर मामूली इक़दामात किए जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर मेन सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स इस्तेमाल किए गए और हुकूमत ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। ये कदम क्यों उठाया गया और इसका स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ा? मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला नीट के जरिए ही मिलता है। इस इम्तिहान में 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने शिरकत की, इसलिए इसका असर मुल्क भर में महसूस किया गया। तहकीकात में ये बात सामने आई कि कुछ लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लीक्ड पेपर फराहम करने का दावा कर रहे थे, लेकिन एजेंसीज के मुताबिक इनमें से अक्सर दावे गलत थे जो तलबा से रकम हासिल करने के लिए किए जा रहे थे। हुकूमत ने दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम को 22 जून तक आर्जी तौर पर बंद कर दिया है और मैसेजेस को एडिट करने की सहूलत 30 जून तक मुअत्तल कर दी गई है। यह कदम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तजवीज़ पर उठाया ताकि गलत मालूमात की फराहमी और धोखेबाजी को कंट्रोल किया जा सके। ऑफिशियल्स के मुताबिक टेलीग्राम पर कुछ चैनल्स पेपर लीक के नाम पर स्टूडेंट्स को निशाना बना रहे थे। इसके अलावा मैसेजेस को बाद में एडिट करने की सहूलत इसलिए ब्लॉक की गई ताकि बाद में एडिटिंग के जरिए ये तासुर ना दिया जा सके कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। कुछ चैनल्स खुलेआम अपने नाम में पेपर लीक जैसे अल्फाज यूज कर रहे थे। पेपर लीक नीट, री नीट 2026, प्राइवेट माफिया एंड REE नीट माफिया वगैरह वगैरह। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वाज़ेह किया कि ये सब दावे झूठे हैं और ये चैनल सिर्फ स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में अहमदाबाद पुलिस के साइबर सेल ने राजस्थान से 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो टेलीग्राम पर झूठी मालूमात के जरिए तलबा से पैसे वसूल कर रहे थे। NTA के मुताबिक टेलीग्राम पर आर्जी पाबंदी लगाना जरूरी हो गया था। साइबर क्राइम सेल के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हार्दिक मकादिया के मुताबिक मुलजिमों के पास नीट या किसी भी इम्तिहान का असली पेपर या मटेरियल नहीं मिला। बुनियादी तौर पर ये लोग टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड में मुलव्विस थे। नीट मुसलसल चंद बरसों से पेपर लीक तनाजात का शिकार रहा है, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि टेस्टिंग का पूरा निज़ाम कितना सिक्योर है। इम्तिहान की मनसूखी और रीटेस्टिंग की वजह से स्टूडेंट्स पर गहरा असर पड़ा है। टेस्ट कैंसिल होने से उनकी मेहनत ज़ाया हुई, दोबारा तैयारी करनी पड़ी और इस गैर यकीनी सूरत हाल से उन पर जहनी दबाव बढ़ा। 2024 में मैंने एग्जाम दिया था नीट का, लेकिन उस साल भी लीक हुआ था। 25 में मैंने दिया नहीं था, 36 में दिया इस साल, लेकिन ये भी लीक हो गया। प्री नीट है 21 तारीख की। तो सर बहुत ज़्यादा एज ए स्टूडेंट आई फील सो सैड अबाउट इट। 25 साल 30 साल पहले से पेपर तो लीक होता हुआ आ रहा है। आज बड़े मार्जिन में हो रहा है, कल इससे बड़े मार्जिन पे होगा। आज नीट का हो रहा है, कल IAS का भी हो सकता है, IPS का भी हो सकता है, UPSC वगैरह सब कुछ हो सकता है। तो जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तो फिर ये तो ऐसे चलता रहेगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि टेलीग्राम पर पाबंदी एक आर्जी एहतियाती कदम है, लेकिन बाज़ माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ प्लेटफॉर्म पर पाबंदी से धोखेबाजी को मुकम्मल तौर पर रोकना मुमकिन नहीं है। टेलीग्राम के बानी पवेल दुरों ने भी इस पाबंदी पर तनकीद की है। उनका कहना है कि इससे करोड़ों यूज़र्स मुतासिर हो रहे हैं। इस दौरान एक नई तहरीक ने भी तवज्जो हासिल की है, जो जेनजी में तेज़ी से मकबूल हो जाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी है। CJP ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किए और तालीमी निज़ाम में जवाबदही और रिफॉर्म्स का मुतालबा किया। तंजीम के बानी अभिजीत दीपके के मुताबिक स्टूडेंट्स के लिए इंसाफ और जिम्मेदारी का तयन लाजमी है और पेपर लीक का सिलसिला बंद होना चाहिए।
जनूब मगरबी इंग्लैंड के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीजों की सहूलत और ऑपरेशन के दौरान राब्ते को बेहतर बनाने के लिए एक मुनफरिद तजुर्बा शुरू किया है, जिसके तहत सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाली टोपियों पर नाम के बैजेस लगाए जा रहे हैं। इस इकदाम का मकसद ये है कि ऑपरेशन थिएटर में मौजूद पूरी मेडिकल टीम और मरीज एक दूसरे को आसानी से पहचान सकें, ताकि एतमाद, राब्ते और हम आहंगी में इजाफा हो। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ये छोटी सी तब्दीली बड़े मस्बत नताइज दे सकती है, खासतौर पर ऐसे लम्हात में जब मरीज पहले ही ज़हनी दबाव और खौफ का शिकार होते हैं। एक मरीज जिनका हाल ही में रीढ़ की हड्डी का बड़ा ऑपरेशन हुआ ने बताया कि डॉक्टरों और अमले के नाम से पहचानने की सहूलत ने उन्हें बहुत सुकून दिया और वो खुद को ज्यादा महफूज और पुरएतमाद महसूस करते रहे। मजीद तफसील उमर आफरीदी से। एक छुपे हुए चेहरे को नाम दे, ये अनोखा ख्याल एक साबका जूनियर सर्जन के जहन में उस वक्त आया जब उन्होंने महसूस किया कि मरीज और अस्पताल का दूसरा अमला अक्सर उन्हें पहचानने में गलती करता है। अब ये ख्याल एक ट्रायल की शक्ल इख्तियार करता है। ऑपरेशन थिएटर एक बहुत ही मसरूफ जगह होती है। NHS में नर्सिंग स्टाफ का एक तिहाई हिस्सा बैरूनी मुल्क से तरबियत याफ्ता है। हमारे पास दुनिया भर से मुख्तलिफ किस्म के लोगों का एक बड़ा ग्रुप मौजूद है, इसलिए हर वक्त ये बिल्कुल ठीक ठीक जानना कि आप किससे बात कर रहे हैं बहुत जरूरी है। चुनांचे मैंने इन हेड्स का आगाज किया है। हम इन्हें बैज हेड्स या आइडेंटिटी हेड्स कहते हैं। शुरू में ये कदम हमने थिएटर्स में बेहतरी के लिए उठाया था, ताकि जहाँ तक हो सके हम दोबारा इस्तेमाल के काबिल चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। शायद इसका सबसे बड़ा और वाज़ेह फ़ायदा उन मरीजों को होता है जो सर्जरी से पहले के घबराहट भरे लम्हों में अब ये देख सकते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। जब आप किसी बड़ी बीमारी या ऐसी किसी सूरत हाल से गुजर रहे होते हैं तो आपको सब कुछ याद नहीं रहता, जैसे कि लोगों के नाम और इस तरह की दूसरी चीज़ें। ये चीज़ वाकई आपको पुरसुकून कर देती है। इससे आपको ये एहसास होता है कि वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं और जाहिर है आपकी ज़िंदगी इन्हीं के हाथों में होती है। एंडी अब ये कोशिश कर रहे हैं कि 2 अस्पतालों में होने वाले इस तजुर्बे को दूसरे अस्पतालों में भी शुरू किया जाए। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप किसी कैफे में बैठे हैं और आपके सामने बैठा शख्स एक आम सी ऐनक पहने हुए है। आपको अंदाजा भी नहीं कि वो खामोशी से आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ये कोई ख्याली मंजर नहीं, बल्कि स्मार्ट ग्लासेस की नई दौड़ ने एक बार फिर प्राइवेसी और निगरानी से मुताल्लिक संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। आज गजनफर हैदर बात करेंगे इसी नई टेक्नोलॉजी और इससे जुड़े खदशात पर। You are going to be one of the first in the world to see specs. You ready? स्नैपचैट बनाने वाली कंपनी स्नैप ने एक नई स्मार्ट ऐनक मुतारिफ कराई है, या स्मार्ट ग्लासेस, और इसकी कीमत है तकरीबन 2000 पाउंड। इस स्मार्ट ग्लासेस का नाम है स्पेक्स। ये ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जिसके ज़रिए डिजिटल चीज़ें हकीकी दुनिया पर नमूदार होती हैं। इसमें एक AI असिस्टेंट भी मौजूद है जो रास्ता बता सकता है, सामने मौजूद अशिया के बारे में सवालों के जवाब दे सकता है और सारिफ जो कुछ देख रहा है इसे रिकॉर्ड भी कर सकता है। कंपनी के सरबराह इवन स्पीगल के मुताबिक ये कंप्यूटिंग के एक नए दौर का आगाज़ है, लेकिन यही नया दौर एक पुरानी तशवीश भी अपने साथ लाया है, और वो है निजी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़। स्नैप का कहना है कि उसने इस बार राजदारी को बुनियाद बनाया है। इवन स्पीगल के मुताबिक स्पेक्स सिर्फ इसी सूरत में कामयाब होंगे जब लोग इन पर एतमाद करेंगे। कंपनी के मुताबिक जब ऐनक रिकॉर्डिंग कर रही हो तो एक रोशनी जलने लगेगी और सारिफ को ये इख्तियार होगा कि इसका डेटा कहाँ महफूज हो, कहाँ शेयर हो और कब हज़फ किया जाए। ताहम माहिरीन का शबा है कि ये ऐनक आम लोगों के लिए नहीं पहुँच पाएगी या उनके लिए नहीं बनाई गई। मार्केट तजियाकार के मुताबिक $2000 से ज़्यादा की कीमत इसे एक आम आला बनने से रोक देगी। ये स्नैप की पहली कोशिश नहीं है। एक दहाई काबिल इसकी स्मार्ट ऐनक नाकाम होकर कंपनी को करोड़ों का नुकसान दे चुकी है। माहिरीन के मुताबिक असल सवाल कीमत का नहीं, एतमाद का है। ये टेक्नोलॉजी तब ही कामयाब होगी जब लोग ये यकीन कर सकें कि उनकी निजी ज़िंदगी महफूज है, और फ़िलहाल यही सबसे बड़ा सवाली निशान है।
रंगा और बिल्ला की फांसी का वाकया बर्रे सगीर की तारीख के उन चंद दिल दहला देने वाले जुराइम में शुमार होता है जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। रंगा और बिल्ला दो ऐसे मुजरिम थे जिनके इक़दामात ने न सिर्फ आवाम में खौफ व हिरास फैलाया बल्कि अदालती निज़ाम और सजाए मौत के हवाले से एक बड़ी कौमी बहस को भी छेड़ा। इनकी गिरफ्तारी, मुकदमे की समाअत और फिर फांसी, ये सब कुछ उस दौर की इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा बन गया। आज भी कई दहाइयों बाद ये केस लोगों के जहनों में एक सवाल छोड़ जाता है कि आखिर वो कौन सा जुर्म था जिसने पूरे मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया और क्यों उनकी सजा को आज तक भुलाया ना जा सका। तफसील आज के ZBC रीड्स में समरा फातिमा से। 80 की दहाई में इंडिया में एक ऐसा मामला पेश आया जिसके मुल्जिमान को फांसी दिए जाने का मुतालबा सारा मुल्क करने लगा। बिल्ला और रंगा ये दो ऐसे लोग थे जिनके जुर्म ने सारे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या किया था और इन दोनों की फांसी को आज तक मुल्क भुला क्यों नहीं पाया है? सुनिए तफसीलात आज BBC रीड्स में। मैं हूँ समरा फातिमा। इस तहरीर में दर्ज चंद तफसीलात कुछ लोगों के लिए तकलीफदेह हो सकती हैं। 31 जनवरी सन 1982 को तिहाड़ जेल में दो जालिम कातिलों रंगा और बिल्ला की फांसी की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल ही थीं। जब ये दोनों सुबह 5 बजे नींद से जागे तो उन्हें चाय का कप दिया गया और उनसे आखिरी मर्तबा पूछा गया कि क्या वो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी वसीयत लिखवाना चाहेंगे। दोनों ने इनकार कर दिया। फिर उन दोनों के हाथों में हथकड़ियां और पाँव में बेड़ियां पहनाई गईं। हुक्म दिया गया कि वो फांसी के प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं, जहां फांसी का फंदा 10 मिनट पहले ही तैयार किया गया था। ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ तिहाड़ जेलर के मुसन्निफ सुनील गुप्ता कहते हैं कि रंगा एक खुशमिजाज शख्स था। उसका कद 5 फुट 10 इंच था। वो हमेशा खुश रहता था। फांसी का सुनकर भी परेशान नहीं था। सुनील गुप्ता बताते हैं कि दूसरी जानिब बिल्ला पेशे के एतबार से टैक्सी ड्राइवर था। उसका कद तकरीबन 5.5 फुट था। वो हमेशा संजीदा रहता था और ये कहकर रोता था कि रंगा ने उसे मुश्किल में डाल दिया, जबकि रंगा कहता था कि बिल्ला ने उसे मुश्किल में डाला है। दोनों हमेशा एक दूसरे से उलझते रहते थे। सुनील गुप्ता कहते हैं कि जेल का कानून ये है कि सजाए मौत पाने वाले शख्स के साथ उस वक्त तक एक आम मुल्जिम की तरह सलूक किया जाए जब तक सदर की जानिब से उसकी रहम की दरख्वास्त मुस्तरद न हो जाए। इसके बाद ही उसे सेल में मुंतकिल किया जाता है और जंजीरों में जकड़ा जाता है। वो कहते हैं, जब मैं उस जेल में गया तो उनके कानूनी मामलात जारी थे। मैंने देखा कि कभी ये दोनों बैडमिंटन खेलते नजर आते और कभी फुटबॉल। आखिर दोनों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि पूरा मुल्क उन्हें फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखना चाहता था। ब्लैक वारंट की शरीक मुसन्निफा और हिंदुस्तान टाइम्स की पॉलिटिकल एडिटर सुनेत्रा चौधरी कहती हैं, जिस तरह हमारी नस्ल के लिए निर्भया केस सबसे बड़ा जुर्म था, उसी तरह हमसे पिछली नस्ल के लिए सबसे बड़ा जुर्म बिल्ला और रंगा ने ही किया था। सन 1978 में दो कम उम्र नौजवान 16 साला गीता चोपड़ा और उनके 14 साला भाई संजय चोपड़ा ने ऑल इंडिया रेडियो जाने के लिए एक गाड़ी में लिफ्ट ली, जहां उनका एक शो था। बदकिस्मती से उन्हें लिफ्ट देने वाले दो गुंडे थे जो मुंबई से दिल्ली आए थे। वो छोटे दर्जे के मुजरिम थे। उनका मंसूबा था कि किसी को अगवा करके उसके खानदान से तावान वसूल करें। उन्होंने इन दो नौजवानों को अगवा इस सोच के साथ किया कि उनके वालिदैन के पास बहुत सा पैसा होगा, लेकिन सारा मामला रेप और फिर कत्ल तक जा पहुंचा। गीता चोपड़ा के रेप और भाई के कत्ल ने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। 30 सितंबर 1978 को मशहूर इंडियन जरीदे इंडिया टुडे में दिलीप बॉब ने लिखा कि गीता और संजय चोपड़ा के वालिद कैप्टन MM चोपड़ा ने बताया कि उनके दोनों बच्चे हफ्ते के रोज शाम 6:15 बजे धौला कुआं ऑफिसर्स क्वार्टर से रवाना हुए थे। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की दूसरी साल की तालिबा थी और उसी शाम पार्लियामेंट स्ट्रीट पर वाक़े ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो में एक प्रोग्राम में शिरकत करने वाली थी। उनके भाई संजय, जिनका कद तकरीबन 5 फुट 10 इंच था, 10वीं जमात के तालिब इल्म थे। बाहर मौसम अब्र आलूद था और सुबह से वक्फे से बारिश हो रही थी। ये तय पाया कि प्रोग्राम के बाद कैप्टन चोपड़ा आकाशवाणी भवन के दरवाजे से अपने बच्चों को ले जाएंगे। जब वो रात 9 बजे वहाँ पहुँचे तो बच्चों का कोई सुराग नहीं था। जब उन्होंने अंदर जाकर दरियाफ्त किया तो उन्हें बताया गया कि गीता और संजय चोपड़ा रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ पहुँचे ही नहीं। इन
بچوں کو تلاش کرنے کے لیے دلی اور دیگر کئی ریاستوں کی پولیس نے اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کر لیں۔ ایک عینی شاہد بھگوان داس نے پولیس کو بتایا کہ تقریباً 6:30 بجے شام کے وقت لوہیا اسپتال کے قریب میرے اسکوٹر کے پاس سے ایک تیز رفتار فیٹ کار گزری تھی۔ میں نے ایک لڑکی کی دبی ہوئی چیخ سنی۔ میں نے اسکوٹر کار کے قریب لے جانے کی کوشش کی۔ اگلی نشست پر 2 افراد بیٹھے تھے اور پچھلی نشست پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ جب کار سگنل پر رکی تو میں نے آواز دی، بھائی کیا ہو رہا ہے؟ لڑکے نے اپنا چہرہ شیشے کے ساتھ لگا لیا اور اپنے خون میں لت پت ٹی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی پیچھے سے ڈرائیور کے بال پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ ڈرائیور ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے بار بار لڑکی کو مار رہا تھا۔ مندر مارگ اور پارک سٹریٹ کے چوراہے پر کار نے رفتار بڑھائی اور سگنل عبور کر گئی۔ گاڑی کا نمبر HRK 8930 تھا۔ رنگا اور بلا دونوں کو بدھا گارڈنز کی طرف لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک سنسان جگہ پر گاڑی روکی، سنجے چوپڑا کو قتل کیا اور اس کے بعد گیتا کا ریپ کیا۔ بعد میں رنگا نے اپنے اعتراف بیان میں کہا کہ میں لڑکی کو اس جگہ کی طرف لے جا رہا تھا جہاں اس کے بھائی کی لاش پڑی تھی۔ وہ میری دائیں جانب چل رہی تھی۔ بلا نے مجھے اشارہ کیا اور میں کچھ آگے بڑھ گیا۔ بلا نے اپنی تلوار سے پوری قوت کے ساتھ لڑکی کی گردن پر وار کیا۔ اس وار کے فوراً بعد وہ مر گئی۔ ہم نے اس کی لاش اٹھائی اور جھاڑیوں میں پھینک دی۔ جیسے ہی اس واقعے کی خبر پھیلی، عوام میں غصہ بھڑک اٹھا۔ جیزس اینڈ میری کالج کے طالبات نے بوٹ کلب پر احتجاج کیا۔ جب اس وقت کے وزیر خارجہ ان سے بات کرنے کے لیے پہنچے تو طلباء نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ ایک پتھر ان کے سر پر لگا جس سے ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ سنیل گپتا کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم مورارجی دیسائی ان کے گھر تعزیت کے لیے گئے تھے۔ یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی وزیر اعظم اس طرح کسی جرم سے متاثرہ خاندان کے گھر جا کر تعزیت کریں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں معلوم ہوا کہ گیتا چوپڑا کے جسم پر 5 زخم تھے جبکہ سنجے کے جسم پر مجموعی طور پر 21 زخم تھے۔ گیتا کا شناختی کارڈ ان کی پتلون کی جیب میں محفوظ حالت میں ملا اور اس سے بٹوا بھی برآمد ہوا۔ قتل اور ریپ کے واقعے کے بعد بلا اور رنگا پہلے دلی سے ممبئی اور پھر آگرہ فرار ہوئے۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ آگرہ سے دلی آتے ہوئے وہ کالکی میل ٹرین میں فوجی اہلکاروں کے ڈبے میں چڑھ گئے، جنہوں نے دونوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سنیترا چودھری بتاتی ہیں کہ واقعے کے فوراً بعد دونوں خوفزدہ ہو کر دوسرے شہروں کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ ایک ایسی ٹرین پر سوار ہو گئے جس میں فوجی سفر کر رہے تھے۔ ان سے جھگڑا ہو گیا اور فوجیوں نے ان سے شناختی کارڈ مانگے۔ رنگا نے بلا سے کہا کہ ان کو بھرا ہوا شناختی کارڈ دے دے۔ اس لمحے فوجیوں کو شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے دونوں کو باندھ دیا اور جب وہ دلی اسٹیشن پہنچی تو انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے بلا اور رنگا کو سزائے موت سنائی، جسے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں نے برقرار رکھا۔ صدر نیلم سنجیوا ریڈی نے ان کی رحم کی اپیل بھی مسترد کر دی۔ پھانسی سے 1 ہفتہ قبل انہیں جیل نمبر 3 کے پھانسی سیل میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں انہیں مکمل تنہائی اور تمل ناڈو اسپیشل پولیس کے اہلکاروں کی 24 گھنٹے نگرانی میں رکھا گیا۔ ان دونوں کو پھانسی دینے کے لیے فرید کوٹ سے فقیرہ اور میرٹھ سے کالو جلاد کو بلایا گیا۔ سنیترا چودھری بتاتی ہیں کہ کالو اور فقیرہ ایک طرح سے مشہور شخصیات بن چکے تھے۔ یہ ایک روایت سی بن گئی تھی کہ پھانسی سے قبل انہیں اولڈ منک شراب دی جاتی تھی، کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بھی شخص، یہاں تک کہ جلاد بھی، ہوش میں رہ کر کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ جیل مینول کے مطابق کسی کی جان لینے کے عوض جلاد کو صرف 150 روپے ادا کیے جاتے تھے، جو بہت کم تھا۔ ان دونوں کو پھانسی دینے کے لیے بہار کی بکسر جیل سے رسی منگوائی گئی۔ سنیل گپتا وضاحت کرتے ہیں کہ یہ رسی بازار سے نہیں خریدی جاتی، بلکہ اسے خاص طور پر بہار کی بکسر جیل میں تیار کیا جاتا ہے۔ اسے نرم اور لچکدار بنانے کے لیے اس پر موم یا مکھن لگایا جاتا ہے۔ بعض جلاد پکے ہوئے کیلے کو کچل کر بھی رسی پر مل دیتے ہیں۔ اس رسی کی لمبائی 1.8 میٹر سے 2.4 میٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ ان جلادوں میں سے ایک فقیرہ مکمل طور پر سیاہ فام تھا۔ وہ اپنے آپ کو یمراج کی طرح پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ دونوں جان بوجھ کر خوفناک دکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھانسی سے ایک دن پہلے دلی کے 5 صحافیوں نے رنگا اور بلا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان میں سے ایک پرکاش پترا تھے، جو اس وقت نیشنل ہیرالڈ کے لیے کام کر رہے تھے۔
प्रकाश के मुताबिक रंगा ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन बिल्ला ने हमसे तकरीबन 20 मिनट तक मुलाकात की। हमसे बात करते हुए उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो आखिर तक यही कहता रहा कि खुदा जानता है कि उसने जुर्म नहीं किया और उसे फंसाया गया, लेकिन हम उसकी जिस्मानी हरकत से समझ सकते थे कि वो झूठ बोल रहा है। फांसी से एक रात पहले रंगा ने मामूल के मुताबिक खाना खाया और सो गया, जबकि बिल्ला ने न कुछ खाया और न ही एक लम्हा भी सो सका। वो सारी रात अपने कमरे में टहलता रहा और बड़बड़ाता रहा। सुनील गुप्ता याद करते हुए बताते हैं कि हमने उन्हें सुबह 5 बजे जगाया और नहाने के लिए कहा। रंगा ने नहा लिया, लेकिन बिल्ला ने इनकार कर दिया। फांसी से पहले दोनों के चेहरे पर स्याह कपड़े का थैला चढ़ा दिया गया ताकि वो बाहर के मनाजिर न देख सकें। फांसी के वक्त बिल्ला रो रहा था, जबकि रंगा आखिरी वक्त तक बहुत जोश में था। फांसी से पहले ही उसने बुलंद आवाज में नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। फांसी से चंद लम्हे पहले मैंने देखा कि दोनों के चेहरों का रंग बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे खौफ के बायस उनके चेहरे स्याह पड़ गए हों। मुकर्ररा वक्त पर जेल के सुपरिटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ला ने सुर्ख रुमाल लहराकर इशारा दिया और कालू ने फकीरा की मदद से लीवर खींच दिया। इसके कई साल बाद तक शुक्ला अपने दोस्तों को वो सुर्ख रुमाल दिखाते रहे, जिससे उन्होंने बिल्ला और रंगा को फांसी देने का हुक्म दिया था। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने मुआयना किया तो बिल्ला मुर्दा पाया गया, लेकिन रंगा की नब्ज अभी भी चल रही थी। फांसी के ऐनी शाहिद सुनील गुप्ता कहते हैं कि ये मुजरिम के वजन पर मुनहसर होता है। हमें बताया गया कि चूंकि वो लंबा था और फांसी के वक्त उसने सांस रोक ली थी, इसलिए वो फौरन नहीं मरा। फिर जेल के एक मुलाजिम को कुएं में उतारा गया, उसने उसकी टांगें खींची, तब जाकर वो मरा। ये खुशकिस्मती थी कि उस जमाने में फांसी के बाद पोस्टमार्टम आम नहीं था, वरना ये खबर सामने आ जाती कि रंगा की मौत बैरूनी मदद से हुई। फांसी की तारीख में ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि लीवर इस कदर जोर से खींचा गया कि जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, जिसमें गर्दन ऊपर रह गई और जिस्म का निचला हिस्सा टूटकर कुएं में गिर पड़ा। फांसी के बाद अक्सर चेहरा बदसूरत हो जाता है, बाज़ औक़ात जुबान और आंखें भी बाहर निकल आती हैं। जेल की इस्तिलाह में इसे गर्दन का लंबा हो जाना कहा जाता है। ताहम उस वक्त किसी बाहर के शख्स ने उस पर तवज्जो नहीं दी और ना ही किसी ने इसकी परवाह की। न बिल्ला के और न ही रंगा के रिश्तेदारों ने उनकी लाशें वसूल की और उनकी आखिरी रसूमात जेल के अंदर ही अदा कर दी गईं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। जुमे को बर्तानिया के इलाके बेडफोर्ड में पेश आने वाले ट्रेन के शदीद हादसे के बाद 9 अफराद बदस्तूर तशवीशनाक हालत में हैं। याद रहे, इस हादसे में ट्रेन ड्राइवर की मौत वाक़ई हो चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर 100 अफराद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं इजाज चौधरी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को इस केस से बरी कर दिया गया है, ताहम दीगर मुकदमात की वजह से उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी।